मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चक्र जो उनका थर्ड आई चक्र है, हाँ. उस पे पहुंची और मैंने फर्स्ट स्ट्राइक किया और वो इतनी जोर जोर से रोने लग गई. हाँ. जहाँ आप टीनेजर होते हो वहां से आपकी लाइफ की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है. Yes. वहां से आपको रिलीज करना बहुत जरूरी है. समवेयर टीच देम टू रिलीज. Yeah. एंड वो इतने भरते जा रहे हैं दैट इज बिकमिंग वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडी. अहमदाबाद जाने के पहले आप कहीं गए हो जहां आपने कुछ झाड़ा लिया है या कोई धागा बांधा है जो उनके अंदर पूरे सालों का भरा हुआ था, उन्होंने कभी निकाला नहीं था, बिकॉज शी ऑलवेज पोर्ट्रेट दैट शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन. If we talk about sound healing therapy in India में still it's evolving and you said in other countries also. तो आप इसमें क्या फ्यूचर देखते हो आने वाले टाइम में? will it like emerge? तो मुझे उनके घर का ड्रीम आया कि उनके घर में एक मिरर है. हाँ. जो मिरर पोजेस था. मिरर पजेस था. हाँ, तो मिरर उनके घर में था जो एज अ डेकोरेशन पीस लगा हुआ था. हाँ. एंड वो मिरर पोजेस था. Silent discos are not good. नो, बिकॉज यू नो somewhere you are taking a frequency which is much higher than what your body wants. तो आपका पूरा डिसबैलेंस हो जाता है बॉडी के सेल्स का. हाँ. जहां आपने हाथ लगाया आपकी साउंड ही नहीं आएगी. Okay. इट विल नॉट कम. Today we have a very special guest with us, a renowned sound healing therapist who has transformed so many lives through the power of sound and vibration. Let's welcome Varsha Bidasaria, who will share their insights and expertise on sound healing. Welcome, Varsha. Thank you, Komal. Thank you for inviting me. And it's a pleasure to be here and share my experience about sound with everyone. So, Varsha, first of all, can you tell me about the background of sound healing therapy and Yeah. what made you to get into this? So, first I'll tell you about my past and how I got into this. So, basically, I was a housewife, married for 21 years, a mother of 3. And Ajay, you have 3 kids. yes, Wow. I have 3 children. And all this time I was looking after my family and my children. And suddenly I got connected with a person who was into spirituality through a friend. Okay. And I traveled with them to Shirdi and I got into my spiritual journey. It's been how, like... It's you're been talking almost 8 years. about 8 years. Okay. And my spiritual journey started with a different kind of energy healing, which is called pendulum dowsing. Okay. Then I still do a variety of energy healings. So that one is pendulum dowsing, then another is Lama Fera. Then there are various, and sound healing is one form of energy healing. Okay. So when I got into different kinds of healings, I got to know someone who was into sound healing. And I got so attracted to it that by all means, I wanted to do it. Okay. So because you know that मैंने इतना Yeah, because this is very unusual thing. Yes, Normally yes. people don't opt this as a, हाँ. you know... और जब मुझे पता पड़ा तो आई एम वेरी बैड एट सिंगिंग. आई एम नॉट इवन अ बाथरूम सिंगर. सो आई थॉट कि मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता ABCD. बट देन व्हेन आई गॉट कनेक्टेड टू दिस टीचर, शी टोल्ड मी दैट यू डोंट नीड एनी previous education on music or sound music. for this therapy. Okay. So I went all into it. But it has been a very long and a different journey. इसमें क्या होता है, बहुत टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं एंड एक जना आपको सारे टाइप के इंस्ट्रूमेंट नहीं सिखाता. सो विद डिफरेंट टीचर्स यू हैव टू लर्न डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स. Okay. सो सबसे पहले मैंने सिंगिंग बोल से चालू करा. वो मैंने बाली में एक टीचर हैं उनसे सीखा. आई लर्न द एंटायर सिंगिंग बोल्स फ्रॉम हर. मतलब मुझे वहाँ रह के for 6 months I had to stay there and learn this. So, Varsha, what is this sound healing therapy और ये exactly होती क्या है? So sound healing therapy क्या है? इसमें sound
देखो क्या है, हर साउंड ओम से चालू होता है. हाँ. द बेसिस ऑफ द यूनिवर्स ओम है. और इस साउंड थेरेपी में हम हर इंस्ट्रूमेंट से ओम निकालते हैं. ओम साउंड आता है और उससे हम हमारे बॉडी के चक्रास को बैलेंस करते हैं और अपनी बॉडी में एनर्जी फ्लो चालू करते हैं इन चक्रास से, जिससे हमारी बॉडी में जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, ब्लॉकेजेस हैं, वो रिलीज होती हैं. ओके. तो साउंड जो है ओम का, वो बेसिकली एक थेरेपी है जो हमको कोई डॉक्टर नहीं बताता. तो इज देयर एनी साइंस बिहाइंड इट? No, यू कैन एक्सप्लेन. इज देयर एनीथिंग? सी द साइंस इज दैट जितनी हमारी बॉडी में जितने सेल्स हैं वो इस ओम साउंड से वाइब्रेट करते हैं. ओके. तो ये ओम साउंड हर चीज का बेसिस है. मतलब हम बॉर्न हुए हैं इस ओम साउंड से. सो हमारे सेल्स, हम बच्चे, जब हमारे अंदर बच्चा होता है तो हम बोलते हैं कि अच्छा पढ़ो, अच्छा सुनो, अच्छा पढ़ो, तो वो बच्चे पे असर करता है. सिमिलरली ये साउंड, आप जो ओम का साउंड है, ये आपकी बॉडी की हर चीज को बैलेंस कर सकता है. तो ये हमारी एग्जिस्टेंस का बेस है. सो दैट इज हाउ ये हमको हेल्प करता है हीलिंग में. ओके. तो आपने अपनी साउंड हीलिंग में आप सेशंस करते रहते हो, तो आपने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आप नॉर्मली यूज करते हो इसमें? लाइक आई नो सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स नेम्स, बट लाइक आई थिंक गोंग या समथिंग लाइक दैट. तो देखिए, सबसे बेसिक इंस्ट्रूमेंट जो आजकल हर कोई यूज कर रहा है आर द बोल्स, सिंगिंग बोल्स. पर इसमें इतना डिफरेंस है, जो ओरिजिनल जो हीलर्स हैं वो प्योर कांसा के सिंगिंग बोल्स यूज करते हैं. उसमें कोई मिक्सचर नहीं होता. और जो हमको आजकल नॉर्मल हर जगह मिलने लगे हैं, हाँ. नेपाल में, ऑनलाइन और सब जगह, दे आर मिक्सचर ऑफ टिन एंड अलॉय. ओके. तो ये ओरिजिनल नहीं है. आप कभी भी इनको स्ट्राइक करोगे उससे ओम साउंड नहीं आएगा. तो इसका सबसे बड़ी पहचान है कि आपके बोल से ओम का साउंड आना चाहिए. एंड मतलब एनीवन विल प्ले, इट विल साउंड लाइक एन ओम. और ये जो प्योर कांसा बोल्स है, ये तिब्बत में सिर्फ 2 फैमिलीज बना रही हैं और ये एक्सटिंक्ट होने वाले हैं. सो जिनके पास पुराने हैं बस उनको ही मिल रहे हैं. अच्छा. हाँ. और न्यू जो मिल रहे हैं वो 100% ओरिजिनल नहीं है. ओके. सो ये 2 तिब्बत में फैमिलीज हैं जिसमें 8 लोग हैं सिर्फ जो हाथ से बनाते हैं. देयर आर नो मशीन्स, दे मेड इट बाय हैंड, दे आर हैंडमेड. ओके. और ये 8 लोग जब एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो ये मिलना बंद हो जाएंगे. Yes. Chalo, we are lucky to have yes. you. So very few people now have these bowls. Then second most powerful healing instrument is the gong. Okay. You use all that? Yes, I use all these. Okay. जो मेरे पास 3 gongs है. I have sourced them from US. Okay. इंदौर में किसी के पास नहीं है. Okay. Nobody uses them. एंड ये जो मैंने ये गोंग सीखा है, देयर इज अ टीचर हु कम्स टू इंडिया फ्रॉम कनाडा एवरी ईयर फॉर अ मंथ टू टीच ओनली गोंग्स. ओके. यस. सो मैंने उनसे सीखा है. एंड ये गोंग भी उनके वहां से ही आते हैं. इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है. अच्छा. इंडिया में है ही नहीं? नोबडी. सबको या तो जर्मनी से मंगाने पड़ते हैं या यूएस से मंगाने पड़ते हैं. देयर आर ओनली 2-3 कंपनीज हु मेक दीज गोंग्स. देन आई हैव वन कांसा गोंग. एक कांसा गोंग में दैट इज अगेन एन ओरिजिनल कांसा. वो भी बहुत मुश्किल से मिलता है. देन वी हैव समथिंग वेरी ब्यूटीफुल जिसको हम रेन स्टिक बोलते हैं. रेन स्टिक. हाँ. तो आपकी बॉडी में अगर हमको पानी का लेवल बैलेंस करना होता है, जो हमारी बॉडी का बहुत बड़ा पार्ट है, तो हम उस रेन स्टिक से हीलिंग करते हैं. उससे पानी का साउंड आता है. अच्छा. और उसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है. बैम्बू का एक लॉग होता है, उसके अंदर कांच के टुकड़े भरते हैं और दोनों तरफ से सील करते हैं और उसको खाली प्ले करने का तरीका होता है. ओके. जिससे वाटर का साउंड आता है. वाह, वंडरफुल. तो आपको अगर मैं वो बजाऊंगी तो आपको लगेगा कि आपके पास कोई नदी बह रही है या आप सी साइड पे बैठे हो, वेव्स आ रही हैं. इट इज दैट साउंड. सो वर्षा, दैट्स वंडरफुल. एंड मुझे ये जानना था, बिकॉज हम लोग काफी कुछ सुनते हैं साउंड हीलिंग थेरेपी के बारे में, बट कभी मैंने इसका सेशन अटेंड नहीं किया. तो ये साउंड हीलिंग थेरेपी सेशंस होते कैसे हैं एग्जैक्टली? इसमें क्या होता है? ये 2 तरीके से होते हैं. या तो आई टेक ग्रुप सेशंस, okay. और या 1-to-1 सेशन. okay. दोनों का एक्सपीरियंस अनकम्पेरेबल है. आप इतना डिफरेंस है दोनों में. ग्रुप में क्या होता है, हम ग्रुप एनर्जीज पे वर्क करते हैं. okay. उसमें या तो यू सिट और यू लाई डाउन और उस पे आप एक मेडिटेशन के जैसे सारे साउंड्स को लेते हो. ठीक है.
और जो हम पर्सनल 1-to-1 सेशन करते हैं उसमें हम ये बॉल्स आपकी बॉडी पे रखते हैं। अच्छा, बॉडी पे रखते हैं। हाँ, आपको लेटा के आपकी बॉडी पे रखते हैं, आपके 7 चक्रास के ऊपर, एंड हर स्ट्राइक के संग आपका एक एक चक्रा एनर्जाइज होता है। और जब हम ये बॉल्स आपकी बॉडी पे रखते हैं तो हमको पता चलता है कि कहाँ आपकी एनर्जी ब्लॉक्ड है, कौन सा चक्रा बैलेंस नहीं है, कौन सा चक्रा क्लियर नहीं है, एंड उस वाइब्रेशन से हम पता कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में क्या इशू है। अच्छा, you can make out. I can make out. Wow, wonderful. I can tell you कि आपकी बॉडी में what is happening, why you are feeling these things. और मेरे पास जब कोई 1-to-1 के लिए आता है तो मैं उसको बोलती हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम मत बताओ, पहले आप वो पूरा सेशन लो, लेट मी टेल यू व्हाट इज हैपनिंग इन योर बॉडी, फिर आप रिलेट करो उस चीज से और मुझे बताओ कि मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं। Wow, या wonderful. सो दिस ऑन द बॉल्स टेल यू एग्जैक्टली कि आपकी बॉडी में कौन से कहाँ एनर्जीज ब्लॉक्ड है, ये आपको कोई डॉक्टर नहीं बताएगा। But Varsha, इसको लेके there are so many misconceptions are also there. Like if I talk about sound healing therapy, so what are those misconceptions about this? See, if you can elaborate. कोमल, सबसे बड़ी बात ये कि nowadays lot of youngsters, Yeah, वो कहीं कहीं जाके they are just learning the bowls, yeah. उसको स्ट्राइक करना सीख के आ रहे हैं, एंड दे आर सेइंग वी आर गिविंग यू अ हीलिंग। वो हीलिंग नहीं है, बेसिकली इट्स अ साउंड बाथ। Yeah. दो होता है, एक साउंड बाथ होता है, एक साउंड हीलिंग होती है। तो अगर आप किसी को सिर्फ साउंड दे रहे हो स्ट्राइक करके तो वो साउंड बाथ है, उसमें आपकी बॉडी को कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ एक मेडिटेशन फॉर्म में मिलेगा। Correct. जब हम साउंड हीलिंग करते हैं तो उसके लिए पूरी एक स्टडी होती है, चक्रास की, साउंड की, वाइब्रेशन की, जो कोई नहीं करता। एवरीवन इज जस्ट स्ट्राइकिंग और वो सोच रहे हैं कि दे बिकम अ साउंड हीलर। Sound healer. And the people बिल्कुल who गलत है। go to them and then they come up with, you know. Yes. और फिर उनके संग क्या होता है, लोगों को Bitter वो साउंड experiences सूट and नहीं all. करता, Correct. लोगों को हेडेक हो जाता है, हेवीनेस हो जाती है, Yes. तो लगता है कि कुछ गलत कर लिया। Correct. क्योंकि हर इंसान के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी यूज होती है, डिफरेंट साइज का बोल होता है, डिफरेंट वेट का बोल होता है, ये सब की नॉलेज बहुत जरूरी है। अब जैसे मैं जो बोल आपके ऊपर यूज करूंगी वो मैं कोई बच्चे पे नहीं कर सकती, Okay. कोई बुजुर्ग पे नहीं कर सकती। अच्छा, ऐसे भी होता है? हाँ, हर किसी को डिफरेंट साउंड की फ्रीक्वेंसी देनी होती है। अगर मैं आपको 438 हर्ट्ज दे रही हूँ तो मैं वो छोटे बच्चे को नहीं दे सकती हूँ, Okay. उसको 235 हर्ट्ज देना पड़ेगा। Okay. तो ये तो कोई पता करता नहीं है, सिर्फ वो स्ट्राइक करना सीख लेते हैं। Correct. तो आपको वो साउंड सूट ही नहीं करेगा। अगर आप प्रेग्नेंट लेडी को आपने इतना हार्श साउंड दे दिया तो वो तो शी विल गो क्रेजी, Oh. शी विल नॉट लाइक द सेशन, Oh. शी विल नेवर वांट टू टेक इट। अगर आपने वही चीज कैंसर पेशेंट को दे दी तो उसको कोई उसका असर नहीं होएगा। नहीं होगा। सो ये सीखना बहुत जरूरी है कि Knowledge is the key and the people who have expertise. they should study and Yeah. then become a healer. खाली बजाना is not Not. the solution. Yeah. Yeah. It is a big study. आप समझ लो एक डॉक्टर की स्टडी है। You have to give 4-5 years. Yeah, for as you this said study. that, you know, you can make out the problem in our body. अगर So, I आपको think that's a- फ्रीक्वेंसी नहीं पता है तो आपको बोल से क्या वाइब्रेशन आ रहा है ये आप कभी समझ ही नहीं पाओगे। Correct. Yes. What advice would you like to give somebody who wish to, you know, start their career in sound healing or who wish to just learn? Any advice? मैं सबसे पहले तो बोलूंगी, अगर आपको कोई भी, ये दिस इज अ फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी, Correct. एक स्पिरिचुअलिटी का मॉड्यूल है ये। Correct. अगर आपको कोई भी ऐसी चीज में जाना है, कोई भी हीलिंग में जाना है, आपको सबसे पहले तो आप 1-1.5 साल अपने आप को बैलेंस करने के लिए गो इनटू एनी फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। Okay. इट इज वेरी मतलब इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू काम योर सेल्फ फर्स्ट। Yes. अगर आप बहुत हाइपर हो, वो आपके में पेशेंस नहीं है, आप बहुत जल्दी, आपको एंगर आता है, इरिटेशन होता है, तो पहले 1-1.5 साल तो आप अपने पे वर्क करो। Okay. या So it's just not like any hobby No, or it's something. not First a you have hobby. to explore yourself and then you should. So अगर मैं खुद को आपको बताऊं तो I was a very impatient person. I don't think so. Because सबसे बड़ी बात, मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी Okay. at a very young age. Oh. I was just 21. Oh, is it? Yes. And then I had my daughter at the age of 22. Oh. एंड मेरे तीनों बच्चे बहुत जल्दी जल्दी हुए, तो आई वॉज वेरी इम्पेशेंट।
So I think getting into meditation and spirituality changed me as a person. I wanted to ask this question to you, like as a person, as a energy healer, how your life got impacted? Yes, तो आपके अंदर 360 डिग्री चेंज होता है कोमल. अगर जो मुझे शुरू से जानता है, आफ्टर आई गॉट मैरिड इन इंदौर, वो मुझे बोलता है कि मतलब यू आर नॉट द सेम पर्सन एनी मोर. मुझे इतने इरिटेशन इश्यूज थे, एंगर, आई वॉज अ किड बेसिकली. I was very immature, and since these 8 years I got into spirituality. I have changed so much कि पहले तो सबसे बड़ी बात ये कि मेरे में पेशेंस बहुत आ गया. I don't get angry very fast. मुझे कोई ने कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया, मुझे उससे अब फर्क नहीं पड़ता. पहले these issues used to matter a lot. Joint family थी, every day there used to be a new issue. But now these things don't matter anymore. Yeah, we were just talking about that only, yes. that you have a big family. Yeah, I have a very big family. But now, and you know, आप जब चेंज होते हो तो आप यूनिवर्स आपके लिए सारी चीजें चेंज करता है. खाली आप नहीं चेंज होते हो, आपके घर का एनवायरनमेंट चेंज होता है, आपके आसपास के लोग चेंज होते हैं, तो हम रिलेशनशिप्स चेंज हो जाती हैं. सो इट मैटर्स अ लॉट. और मैं ये नहीं, अगर आपको हीलर नहीं भी बनना है तो कहीं ना कहीं आपको कोई फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी में जरूर आना चाहिए. यू विल चेंज एज अ पर्सन टोटली. एंड एक बहुत बड़ा लोगों को फियर होता है कि हम अगर मेडिटेशन में जाएंगे या स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे तो हमको आंखें बंद करके बैठना पड़ेगा. एंड पीपल फील अनकंफर्टेबल, समटाइम्स डिस्कम्फर्ट के कारण भी दे डोंट गो फॉर मेडिटेशन. तो हमको फोकस करना पड़ेगा. ये सब कुछ नहीं होता है. हर आपको जो कंफर्टेबल हो आप वो करो. अभी भी इतना करने के बाद इवन आई कांट सिट विथ माय आईज क्लोज्ड एंड डू अ मेडिटेशन. मैं जब चक्रा मेडिटेशन कराती हूँ या खुद करती हूँ, हम उसमें आंख खोल के बैठते हैं. हम पूरी वॉइस के साथ मेडिटेशन करते हैं. कोई शांत नहीं बैठते, कुछ नहीं, हम मंत्रा चैंटिंग्स करते हैं. उस तरीके से हमने अपना मेडिटेशन चालू करा है. तो बहुत तरीके हैं जिससे आप मेडिटेट कर सकते हो, स्पिरिचुअलिटी में. एंड आई थिंक मेडिटेशन इज द की. जैसे एज यू ऑलरेडी मेंशन्ड दैट यू नो सेल्फ हीलिंग इज the biggest form of meditation. Yes. And self healing is very important. Yes, very because important. Because if you want आप खुद अंदर से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड हो तो यू कैन नॉट हील अदर्स. यू कैन नॉट. मैं आपको बताऊं, अभी भी मेरी लाइफ में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ या मैं बहुत ऑक्यूपाइड हूँ, तो मैं उस दिन के सारे सेशंस कैंसिल कर देती हूँ. क्योंकि जब मैं खुद ही काम नहीं हूँ, मैं खुद ही उस मोड में नहीं हूँ, तो मैं दूसरों को हील कैसे करूँगी. करेक्ट. सो आई डोंट टेक एनी सेशंस दैट टाइम. आई वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग. जैसे मैं आई एम बीइंग अ ट्रैवल एडवाइजर एंड ऑल्सो अ ट्रैवलर. आई कीप ट्रैवलिंग. और मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया कि इफ़ यू गो टू नॉर्थ ईस्ट साइड, इफ़ यू गो टू एज यू सेड नेपाल साइड और जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल साइड, इफ you'll go there you will get such things. Yes. in एम्पल. वो मतलब हर आई थिंक हर एवरी शॉप पे आपको ये गॉन्ग्स या ये सिंगिंग बोल्स मिलेंगे. एंड इवन दे विल टीच यू हाउ टू डू इट. एवरी कॉर्नर, एवरी रुक एंड कॉर्नर यू विल फाइंड इट. सो व्हाई मुझे लगता है ये ऐसा रीजन क्या है कि वेस्टर्न साइड या हमारे एमपी में या आसपास के एरियाज में ये अभी तक नहीं पहुंचा है और वहां पर इसका इतना क्रेज है लोगों को. कोमल क्या है कि ये चीजें आई सब नॉर्थ ईस्ट से ही है. ये जो थेरेपी है ये इंट्रोड्यूस भी तिब्बत में हुई है. ओके. एंड बेसिकली आप देखो वहाँ के लोग दे बिलीव इन बुद्धा. यस. उनके लिए बुद्धा इज एवरीथिंग. सो दीज आर ऑल फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन जो कहीं ना कहीं जो बुद्धा ने सिखाया है उससे रिलेटेड है. एंड वहाँ पे ये लोग इसको एज अ प्रोफेशन नहीं करते. दे आर डूइंग इट एज यू नो, उनके लिए ये एक पूजा है. जैसे हम यहाँ भगवान की पूजा करते हैं, वहाँ ये साउंड हीलिंग उनके लिए एक तरह का बुद्धा से कनेक्ट करने का फॉर्म है. हमारे यहाँ जो भी इसको लेके आ रहा है वो सबसे पहले तो प्रोफेशनली लेके आ रहा है. दे वॉन्ट टू टेक इट एज अ प्रोफेशन. करेक्ट. They are not taking it as a form of meditation or as a form to connect to the divine source. Yes. And I think these people are the these are live examples. If we see वहाँ के लोगों को और यहाँ के लोगों को देखोगे ना वर्षा, एक्चुअली आपको एक बिग डिफरेंस दिखेगा.
उनके नेचर में हाँ, बहुत बड़ा they are very difference cool, दिखेगा। calm, Very composed calm, people. और वहां जाके आपको खुद को इतनी शांति मिलेगी। Yes, they are very happy go lucky kind Yes. of people. And यहाँ मुझे लगता है इसकी जरूरत यहाँ ज्यादा है इंडिया में। पर- Sorry, मध्य प्रदेश में and other states. अच्छा, अब जो लोग अभी तक तो कोई, मतलब मैं बताऊं आपको, हमारा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट इतना कम है, और जो लोग कर भी रहे हैं वो बहुत ऊपरी तौर पे कर रहे हैं, हाँ। इसलिए ये चीजें हमारे यहाँ बहुत स्लो आ रही हैं। Correct. एंड द यंगस्टर्स बेसिकली शुड पिक अप दिस, ये उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे पास, मैं आपको बताऊं, 80% यंगस्टर्स आते हैं जो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से परेशान है, एंड उनकी लाइफ में आई थिंक मैक्सिमम प्रॉब्लम्स है। दे शुड डेफिनेटली गो इनटू स्पिरिचुअलिटी, और ऐसा कुछ वो लोगों को यहाँ लाना पड़ेगा। Correct. हम तो अब आउटडेट होते जाएंगे, एज वी एज वी विल गेट आउटडेटेड। Yes. इट इज द यंगस्टर्स हु कैन ब्रिंग दिस हियर। Correct. एंड जितना अब स्पिरिचुअलिटी बढ़ रहा है, पहले वो नहीं था। Yes. एंड स्पिरिचुअलिटी हम सिर्फ योगा के फॉर्म में जानते थे, अब डिफरेंट फील्ड्स हम जानने लग गए हैं स्पिरिचुअलिटी। Yeah, there are so many forms. Yes, there are loads and loads of spirituality forms now, but the youngsters will have to pick it up. Mm-hmm. Correct. So, Varsha, if we talk about these stuff which we normally bring from other states, so is there any kind of therapy or any kind of session which we can conduct at home? कोई simple चीज जो हम techniques घर पे करके we देखो, can आप क्या करो, हर कोई ये आजकल जब बाहर जाता है ये बोल्स लेके आता है। yes. ठीक है, तो कुछ नहीं, ये ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाते हैं फिर हाँ, आपके बस वो You लोगों never ने use ला it. के सिर्फ अपने रूम्स में सजा दिए। Yes. आप इसको सिर्फ इतना कर सकते हो, सोने के पहले हाफ एन आवर जस्ट सिट ऑन योर बेड और एंड जस्ट प्ले दैट बोल नॉर्मली, उसको सिर्फ स्ट्राइक करो आप। अगर वो ओरिजिनल नहीं भी होगा तो समवेयर आप उस साउंड से खाली कनेक्ट करोगे, और आपको थोड़ी कामनेस तो मिलेगी ही, ओनली विद द साउंड, with the sound. इवन इफ इट इज नॉट द ओम साउंड, बट इट इज अ वेरी बिग फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। Okay. बोल अगर आपके पास है, अच्छा मैं आपको बताऊं, बोल भी नहीं चाहिए। अगर आपके मंदिर में घंटी है, जो हम नॉर्मल घंटा बजाते हैं मंदिर में या घर में, वो छोटी घंटी होती है, वो एक मेडिटेशन का बहुत बड़ा फॉर्म है। Yes. आप अपने बेड पे बैठो, आंख बंद रखो या आंख खुली रखो, और उस घंटी को अपने कान के पास बजाओ, आपको इतनी कामनेस मिलेगी, हाँ. आपको और कोई मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। हमको जब सिखाते हैं कुछ भी, बोल सीखो, गॉन्ग सीखो, वो सबसे पहले वो घंटी बजाना बताते हैं। I think that is the reason in temples while doing aarti Yes, उसका एक short- लॉजिक था। what is that logic? लॉजिक इज कि दैट साउंड विच कम्स फ्रॉम दैट घंटा, आप पहले ना सारे घंटे ब्रास के होते थे, हाँ. या ये कांसा के होते थे, हाँ. तो उनका लॉजिक ही यही था कि वो घंटे से वो ओम का साउंड आता था। हाँ. और वो आपको इतनी आपके सिस्टम को क्लियर करता है, इतना प्योरीफाई करता है कि उसका लॉजिक था, आप घंटा बजाते जाओ बजाते जाओ बजाते जाओ। Yes. आज भी आप कई मंदिरों में जाओगे ना, वो घंटा बहुत देर तक बजेगा। बजाते हैं। इनफैक्ट हम अपने घर पे जब आरती परफॉर्म करते हैं, हाँ. तो दैट 5 minutes ऑफ आवर टाइम ऐसे नहीं लगता कि बहुत हीलिंग हो रही है। बहुत, और आपको इतनी आरती शांति करना- मिलेगी, हाँ. आपको वो आरती गाने से उतनी शांति नहीं मिलेगी जितनी वो जितनी घंटी के बजाने साउंड से मिलेगी। करेक्ट, घंटी, तो- एंड देयर आर सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स। यस, तो आपको वो घंटी 5 मिनट 10 मिनट जरूर बजानी चाहिए सुबह भी, बिफोर गोइंग टू स्लीप। हाँ, एंड एक तो मॉर्निंग में, ओके। once you are fresh, you have your bath, sit in your mandir, or if you don't even have a mandir, sit anywhere and play that bell for 5 minutes, और रात को सोने के पहले, ओके। and I can guarantee you आपको इतनी अच्छी नींद आएगी। हाँ, आपको कोई जरूरत नहीं है किसी थेरेपिस्ट के पास जाने की। वाओ, Yes. वंडरफुल। सो मेरे पास जितने इंसोम्निया के पेशेंट्स आते हैं, मैं सबको बोलती हूँ आप पहले घर जाके ये घंटी का ट्रिक करो। ओके ओके वर्षा, सो मुझे आपसे एक चीज़ जाननी थी, बिकॉज आप इतने सारे सेशंस कंडक्ट करते रहते हो, तो व्हाट इज दैट मोस्ट अनयूजुअल एक्सपीरियंस यू हैव हैड व्हाइल हैविंग सच सेशंस? ओके, सो मैं आपको बताऊं कोमल, जो सेशंस मैं बच्चों के साथ लेती हूँ, हाँ, बच्चे मतलब फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 5 years to 15 years, ओके, इज द मोस्ट ब्यूटिफुल सेशन। इज इट? यस, वी विल सून कंडक्ट वन। यस, और मैं बताऊं ये बच्चे इतने इंक्विजिटिव होते हैं, इतने एक्साइटेड होते हैं, और वो इतना इस साउंड को लेते हैं क्योंकि उनके माइंड्स बिल्कुल प्योर हैं, बिल्कुल फ्री हैं।
उनके अंदर कोई डाउट नहीं है। बट डू यू थिंक बच्चों को लेना चाहिए? बिल्कुल, मतलब फ्रॉम द एज ऑफ जब बच्चा बैठ सकता है ओके, तब से हम शुरू कर देते हैं। अच्छा, राइट फ्रॉम द एज यस, 4 years जब बच्चा बैठ सकता है। आई डू अ लॉट ऑफ मदर एंड टॉडलर सेशंस। ओके, हाँ, तो बच्चे मदर्स की लैप पे बैठते, दे टेक द एंटायर, और मैं बताऊं कोमल, एक बच्चा उठ के नहीं जाता। और वो सेशन सबसे ब्यूटीफुल होता है। वो बच्चे इतने प्योर हार्ट से इस सेशन को लेते हैं और आपको उनको देख के समझ आता है कि इट इज गोइंग इनसाइड देम। ओके, एंड उसके बाद दे कम अराउंड मी, दे वांट टू प्ले द बॉल्स, दे वांट टू स्ट्राइक एवरीथिंग। इट इज सो ब्यूटीफुल। वाओ, आई कैन टेल आई यू, कैन फील इट। आई मतलब मेरे को इतनी शांति मिलती है वो सेशन Looking at them. करके। इट इज ब्यूटीफुल। Wow. So, Varsha, do you have any of your favorite sound healing instrument which you take yourself with like everywhere? Yeah. Like a sidekick? Yes, see, Komal, Yeah. these 2 instruments Okay. I carry. And what it is called? This See, is the bowl. This is the right? bowl. This is that pure Kansa bowl Okay. which is handmade. Okay. And this is my bell. Okay. This is again a Kansa bell. Wow. So मैं कहीं भी travel करूँ, even if I'm traveling So, internationally. would you like to play it for our Yes. listeners? I will. You would love it. show you how does this go. Okay. What is this? This is stick. This is called a mallet. Mallet. तो ये भी बड़े डिफरेंट टाइप्स के आते हैं। Okay. और हर मैलेट से डिफरेंट साउंड आता है। Okay. मतलब फ्रीक्वेंसी ओम की हर मैलेट के संग चेंज हो जाएगी। तो फिर whenever I'll travel next, मैं आपसे पूछ लूंगी कि क्या लेना चाहिए, Yes, क्या नहीं लेना आप चाहिए। बिल्कुल because we पूछ के are- जाएं, I'll guide you कि आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी का बोल लेना चाहिए। अच्छा, that also you. यस, Oh wow. तो क्योंकि आप तो ले लोगे सबसे बड़ा देख के या छोटा देख के, पर उसकी फ्रीक्वेंसी अगर आपसे मैच नहीं कर रही होगी तो कोई मतलब ही नहीं है। Okay. सो आई टेल यू व्हेन यू गो नेक्स्ट। Done. सो अभी आप इसको पहले सुनना, फिर आई टेल यू। ये जो वाइब्रेशन है ये आपकी हम बॉडी पे रख के देते हैं आपको। एंड अगर आपकी बॉडी में कहीं एनर्जी ब्लॉकेज होगा तो ये वाइब्रेशन का वाइब्रेशन ही बदल जाएगा। अच्छा, it won't sound. इट विल नॉट गो स्ट्रेट, इट विल गो अप एंड डाउन। Okay. जैसे आपकी वो होती है ना ECG, हाँ. वैसे आपका साउंड ऊपर नीचे जाएगा। That's beautiful. यस, सो एंड अगर मैंने एक बार इसको स्ट्राइक किया और जब तक मैं दोबारा इसको स्ट्राइक नहीं करूंगी ये बचता ही जाएगा। सो यही वो घंटा जो हमारे मंदिरों में होता है ना, हाँ. उसका लॉजिक यही था। Okay. नाउ दिस विल गो ऑन वाइब्रेटिंग। Yes. अब I can ये- hear the voice. अब यही वाइब्रेशन अगर मैंने कोई पेशेंट को दे दिया, कैंसर पेशेंट को या ट्रॉमा पेशेंट को या प्रेग्नेंट लेडी को, तो वो तो भाग जाएगा, अच्छा. उनको सूट ही नहीं करेगा। इट्स टू श्रीकिंग फॉर देम। But there must be something else for them. मतलब मेरा प्ले करने का तरीका भी डिफरेंट होगा उनके लिए कि साउंड उसमें से उतना ही आए, फ्रीक्वेंसी उतनी आए। Because you have expertise in Yes. that, you have learned a lot, यस, so you know the. सो देन एक ये जो मेरा बोल है इसको भी प्ले करने का तरीका होता है। You are not supposed to touch your fingers to the bowl. Okay, you have to You keep it just like have this. to keep it on your palm. Okay. जहाँ आपने हाथ लगाया आपकी साउंड ही नहीं आएगी। Okay. It will not come. So this is ये वाला जो है, it's a most universal frequency bowl Okay. जो मैक्सिमम ग्रुप हीलिंग्स में यूज होता है। Okay. पर यही आई कांट यूज इट फॉर चिल्ड्रन या जो मेरे यहाँ 1-to-1 हीलिंग के लिए आते हैं उनके लिए हर अलग चक्रा के लिए अलग बोल होता है। अलग बोल होता है। तो द साइज मैटर्स, द फ्रीक्वेंसी मैटर्स। तो इट हैज एक्चुअली इट इज अ ह्यूज स्टडी। Yes, so I think कहते हैं ना हर डिजीज के लिए एक अलग मेडिसिन Yes. होती है। So इसलिए हर साउंड एक डिजीज के लिए You cannot अलग है। just buy it and start using it. You cannot. You cannot. और जो कोई ऐसा कर भी रहा है is not doing the right thing basically. Correct. वो प्रोफेशनली आप कर रहे हो
but it's not. But you're not helping the people in a way, Yes, you know. yes, they and you be- should not do it You should not do it. because this is basically not a profession. Yes. It is a form of spirituality. Correct. और आप जैसे जो चीज भगवान के लिए करते हो वही आप इसमें कर रहे हो, तो why do you want to hamper someone else with a wrong thing? Correct, correct. सो अब मैं जैसे आपको बताऊं, अब सबसे बड़ी बात है, ये पहले साउंड थेरेपी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं थी मेडिकल फील्ड में. हाँ. अब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, वेयर इवन द डॉक्टर्स आर कॉलिंग साउंड हीलर्स अच्छा. टू कम टू हॉस्पिटल फॉर देयर पेशेंट्स. जो नॉर्मल मेडिकेशन से डॉक्टर्स को लगता है कि वो नहीं हील हो रहे Heal हो रहे हैं, हैं. एंड दिस इज आजकल इसको ऑल्टरनेटिव मेडिसिन बोलते हैं. Okay. This therapy is now called alternative medication. Okay. So now we are going to hospitals and giving this therapy. Okay. मैं खुद जाती हूँ. I'm connected to a lot of hospitals where I go to a lot of coma patients Okay. and cancer patients. So coma patients को basically क्या होता है, आप sound से बने हो. हाँ. आप बने सारे cells जो हैं आपके sound से work करते हैं. तो when we go and give them this healing, उनकी जो हीलिंग प्रोसेस होता है नॉर्मल मेडिकेशन से, वो 80% फास्टर हो रहा है. Okay. Great. मतलब टचवुड विद द डिवाइन ग्रेस ऑफ गॉड, 2 कोमा पेशेंट्स आई हैव हील्ड वेरी फास्ट. Wow, दे हैव कम wonderful. बैक होम फ्रॉम द हॉस्पिटल. I wanted to know this, that Yes. how many people, how many people's lives you have impacted through your sound healing I sessions. have so many kids, cancer kids, Yeah. जिनको कैंसर है. हाँ. उनकी बीमारी तो मैं ऑफ कोर्स नहीं खत्म कर सकती हूँ, But- पर जो उनका उसका पेन Pain होता है, है रेडिएशन का Yes, that you एंड can कीमो का, Yeah. वो ऑलमोस्ट 20% पे आ जाता है. Minimize कर Yes. सकते हो. Correct. सो बच्चे इतनी खुशी, मैं बताऊं कोमल आपको, वो बच्चे ट्रीटमेंट लेते हैं, उनकी कीमो होती है और वो वहां से सीधा मेरे पास आते हैं Wow, wonderful. एंड आई गिव देम दिस थेरेपी. और उनको लगता है कि हमको मतलब हमारा सारा पेन चला गया. दे फील दे आर सो काम. उनको पेन फील नहीं होता. एंड मेरे को इतनी अच्छी फीलिंग आती है सीइंग दोज लिटिल चिल्ड्रन, क्योंकि कहीं ना कहीं आई एम एबल टू जस्ट हेल्प देम इन अ स्मॉल वे. Yes, yes. So it's a beautiful feeling which I love. And I think these small happiness matters a lot. Lot. And I really think that these things should be promoted in India. People still believe in allopathy and homeopathy. Homeopathy. But this form of sound therapy and ये energy healings का acceptance का level अभी बहुत कम बहुत है. कम है. Especially if we talk about metro cities हाँ. and west side. And जितना मैंने US और यूरोप और UK में देखा है, People are have- shifting to Yes, alternative they have medicine. craze of हाँ, this. हमारे यहाँ क्या होता है, कुछ भी हुआ फट से एक पिल पॉप कर लो तो हमको लगता है हमारे लिए बेस्ट है. Best है. एंड वी लुक फॉर फास्टर सॉल्यूशंस. Very true. तो और ये अब बहुत धीरे धीरे आ रहा है, ऐसा नहीं है, बट एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कोमल, इसमें सबसे बड़ी बात होती है ट्रस्ट. अगर कोई मेरे पास आ रहा है तो सबसे बड़ी बात है उसको ट्रस्ट होना पड़ेगा, पेशेंस होना पड़ेगा, एंड उसको बहुत ओपन हार्ट से अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी पड़ेगी. अगर वो मुझे नहीं बताएगा हाँ. कि डीपली उसके अंदर क्या हो रहा है, अब मैं आपको आपके चक्रास से बता दूंगी कि ठीक है आपको इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, हाँ. पर इंसोम्निया का प्रॉब्लम क्यों है, क्यों है? अगर आप मुझे ये नहीं बताओगे कि आपके इंटरनली What are क्या the चल रहा है, reasons? व्हाट आर द रीजंस, वर्क, रिलेशनशिप, व्हाटएवर, देन आई कांट हेल्प यू. Correct. समवेयर आई नीड टू नो वेरी ओपनली, जो लोग बताना नहीं चाहते. हाँ. अभी ये ओपननेस नहीं आई है कि लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर करें. Yes. तो ये बहुत जरूरी है कि आप आपके हीलर पे ट्रस्ट रख के. And you said it very beautifully that first you have to trust your healer. Yes. That whatever is she doing, she is gonna give her 100% and you will get yes. that 100%. हाँ, and you should be ready to take that. Yes. Yes. You can't. You know, just want to try it out. हाँ. When you are going, ki let's try it, so it won't work. It for will you. not It's work. like manifestation. How manifestation So works. मेरे जो गुरु हैं उनका बहुत, मेरे को एक उनका फ्रेज है जो मेरे को, आई लिव ऑन दैट फ्रेज, where logic and magic begins. Yeah. तो आप जब एक्स्ट्रा लॉजिक लगाओगे, ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों, वो तब आपकी ऑल्टरनेटिव थेरेपी कभी वर्क नहीं करेगी. यू हैव टू ट्रस्ट योर थेरेपिस्ट, योर हीलर, Your guru.
क्योंकि आप उसके बिना यू विल नेवर टेक दैट एनर्जी इनसाइड. यू शुड बी ओपन टू टेक दैट एनर्जी इनसाइड. करेक्ट. वर्षा, कोई फनी चीज हुई है, कोई फनी एक्सपीरियंस यू हैव हैड व्हाइल हैविंग सच सेशंस फॉर द फर्स्ट टाइम विद समबडी? So I'll tell you a very recent thing. मैंने अभी एक ये सिंगिंग बोल मंगाया है. हाँ. एक कांसा सिंगिंग बोल which is a huge size. उसमें कोई भी बैठ सकता है. अच्छा. हाँ, you can sit in that Okay. bowl. It's so big. Okay. मतलब हम और आप भी बैठ सकते हैं उसमें अच्छा. properly. And मुझे ना उसको लोगों को to show people हाँ. that kansa bowl, I asked my daughter to sit in that bowl. Okay. And I wanted to click a video. हाँ. And मैंने उसमें उसको बिठाया and मैंने उसको स्ट्राइक किया तो सारे वाइब्रेशंस उसकी पूरी बॉडी में जा रहे थे. हाँ. एंड उसको इतनी वाइब्रेशन जा रहे थे, शी कुड नॉट स्टॉप लाफिंग. उसको इतनी गुदगुदी हो रही थी पूरी बॉडी में दैट शी जस्ट वेंट ऑन लाफिंग एंड दैट वीडियो शूट डिड नॉट हैपन. वाओ, वंडरफुल. सो उसका इतना पावर है उस बोल का. हाँ. तो शी इज वेरी लीन. बट यू कैन सिट एट द बोल. यस, मतलब मेरे को जब आपके चक्रास को 100% क्लियर करके लॉक करना होता है, हाँ. तो वो फाइनल प्रोसेस होता है. Okay. कि मैं उसमें पर्सन को खड़ा करती हूँ Okay. या बैठा देती हूँ. ऑल दोज हु कैन सिट विद देयर लेग्स फोल्डेड, आई Okay. मेक देम सिट. Okay. और जो नहीं बैठ पाता है, मेक देम स्टैंड. Okay. एंड देन व्हेन वी स्ट्राइक एंड गिव देम द वाइब्रेशन, वो वाइब्रेशन उनके पूरे फीट से हेड तक ट्रैवल करता है Okay. एंड उनको पूरी बॉडी में फील होता है. And that is the last process of chakra clearing. Okay, so everyone, if they are coming to you, everyone has to go to Yes. through अगर that session. आप मेरे से थेरेपी लेने आते हो चक्रा क्लियरिंग की, तो लास्ट प्रोसेस है टू क्लोज योर चक्रास विद दैट. Okay. एंड इट इज सो पावरफुल कोमल कि वो होने के बाद 4-5 दिन तक तो यू कैन फील दैट वाइब्रेशन इन योर बॉडी गोइंग टू ईच चक्रा. यस. एंड लोगों ने करा के मुझे फोन किया है कि मैम वी कैन इन एवरी चक्रा वी कैन फील दैट एनर्जी ऑफ दैट बोल. Beautiful. सो मैं तो सबको बोलूंगी, I would love to try this someday. Everyone should come and try that. Yes, I would love to. चक्रा थेरेपी. It's beautiful. एंड वर्षा, कोई ऐसा सरप्राइजिंग रिएक्शन आया हो कभी किसी के साथ, तुमने ट्राई किया और ऑल ऑफ अ सडन इट कुड बी गुड, इट कुड बी बैड, एनीथिंग? हैव यू एवर मेरे लिए एक्सपीरियंस्ड? मैं बताऊं, सबसे मोस्ट टचिंग experience was there was one very old auntie, aged auntie, she must be in her 70s, very active. उनको देख के आप बता नहीं सकते हो कि she is going through any problem or anything. very happy, very bubbly. she said मेरे को तो बस ऐसे ही आना है, I've heard about you and I've heard about sound therapy. और मैं बहुत travel नहीं करती हूँ, तो मैंने कोई होटल में भी experience नहीं किया है, तो I just want to come for relaxation. Okay. वो आई, मैंने वो She even told you anything? She just wanted to come for relaxation. She said I have no problems. in life, yeah. मैंने थेरेपी चालू करी, वो बोल्स उनके ऊपर रखे. कोमल, जब मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चक्रा, जो उनका थर्ड आई चक्र है, उस पे पहुंची और मैंने फर्स्ट स्ट्राइक किया और वो इतनी जोर जोर से रोने लग गई. मतलब एकदम आवाजें निकाल के, हाउल करके, टीयर्स फ्लोइंग. बट आई डिड नॉट स्टॉप. आई टेल यू व्हाई आई डिड नॉट स्टॉप, बिकॉज दिस इज अ फॉर्म ऑफ रिलीज. Okay. तो जो उनके अंदर पूरे सालों का भरा हुआ था, उन्होंने कभी निकाला नहीं था, बिकॉज शी ऑलवेज पोर्ट्रेट दैट शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन. हस्बैंड्स डेथ, a child had passed away in an accident, ये सब मुझे बाद में पता चला. पर उस समय वो इतना फूट के उनके अंदर से निकला. मैंने सारा निकलने दिया. I did not stop. She did not want me to stop. हमारा ये पूरा चला, थर्ड आई तक ये चला. क्राउन चक्रा पे पहुंच के she stopped. जब पूरी हीलिंग खत्म हुई, she got up. She told me all her life incidences. Okay. Then I told her कि आंटी, ये आपका रोना और सब बहुत जरूरी था, क्योंकि ये इतने सालों से आपने अंदर भर रखा था. And Varsha, don't you think ये every third female या मेल के साथ ये चीज है? बिल्कुल है. एंड सबसे बड़ी बात शो ऑफ, हमारे अंदर दिखावा इतना ज्यादा है. हम अपने आप को फेस नहीं करना चाहते, हम रिलीज ही नहीं करते. Yes.
Why we are talking especially about men. the north, we are talking about the northeast, we are talking about the Himachali people. Why they are happy? Because they went out their things. अच्छा, वो सबसे मैं आपको बताऊं, वो आपकी इनके जो ये बुद्धा टेम्पल्स होते हैं, जो मोनास्ट्रीज होती है, ये वहां जाते हैं, अपना मेडिटेशन करते हैं, उसमें सब निकाल लेते हैं, सब निकाल लेते रोते हैं, हैं, they cry. सब करते हैं. Yeah. हम ये करते ही नहीं है. हाँ. हमारे यहाँ द मेन Yes, mostly they don't want to take it out. correct. Now I have started getting men who come, they share, they take it out. Earlier, I was talking to Vikas Chaudhary. He's a relationship coach. We were having one podcast with him, and the same thing we were discussing. That if we talk about today's men's, earlier, you know what? पुराने time में क्या होता था? Men's, they went out their emotions through anger. हाँ. They used to get angry for every small thing. So it's again a form of emotion. आज के time में वो भी नहीं हो रहा है. नहीं, आज के टाइम में मैं वो भी आपको नहीं कर बताती रहे हूँ हैं क्या वो वेंट आउट, वो अल्कोहल के थ्रू वेंट आउट करते हैं. They take extra alcohol. They'll start smoking more. Yes. These are the forms of releases that they are doing, which But is they very won't, harmful. They won't go and tell anyone. They will not not even go their and partners. share. नहीं, they will not tell the partners. They will not go to a therapist. They will not go to a counselor. तो हमको बहुत जरूरी है कोई ना कोई फॉर्म से रिलीज करना. मैं बताऊं, आप ट्रैवल कर लो, you just go out for a holiday. Yes. That is also a very big form Yes, of I release. always say that. I हाँ. always say that. आपको ट्रैवल करो, आप हॉलीडेइंग करो, आप जो एंजॉय करते हो वो एक हॉबी पकड़ लो, पर रिलीज व्हाट यू हैव स्टोर्ड इन योर बॉडी. Correct. वो आंटी का इतना रिलीज हुआ. कोमल, शी हैड कम फॉर अ रिलैक्सेशन सेशन. नाउ शी इज माय रेगुलर क्लाइंट. शी कम्स, शी टेक्स द थेरेपी. हर थेरेपी में वो रोती है. हाँ, क्योंकि उन्होंने कभी निकाला ही नहीं. She always portrayed that she is a very strong female in society. Yes. And she managed her husband's death very well, her son's death. But kahin na kahin she needed that venting out. Yes, and I think being strong is a myth nowadays. You cannot always pretend to be strong. Sometimes And you have release to be weak. karke she has become so calm. She started doing so many new things जो वो पहले नहीं करती थी. So I really want to tell everyone कि one form of release you should have. You should have. Whether it could be sound healing or Yes, anything, solo yes. traveling. And जहाँ आप टीनेजर होते हो, वहाँ से आपकी लाइफ की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है. Yes. वहाँ से आपको रिलीज करना बहुत जरूरी है. Yes. So I believe teenagers has to understand that how important it is, and I think being a INMO community, we should have such sessions with Yes. teenagers kids also. And we What I should feel. somewhere teach them to release. Yeah. And वो इतने भरते जा रहे हैं that is becoming very harmful for the body. So वर्षा, ऐसी कौन सी कॉमन डिजीज है जिसमें ये साउंड हीलिंग थेरेपी मदद कर सकती है इन अ वे, और ऐसी कुछ चीज़ें जिसमें हमें इसकी हेल्प नहीं लेनी चाहिए? ठीक है. तो कोमल, सबसे पहले तो ऐसी कोई भी बॉडी में डिजीज नहीं है जिसके लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते. अच्छा, यू कैन यूज इट फॉर एनी प्रॉब्लम दैट इज रिलेटेड टू योर माइंड, बॉडी एंड इमोशंस. ओके. तो हर चीज के लिए अब साउंड थेरेपी यूज हो रही है. एंड आप अगर गूगल करोगे, आप नेट पे जाओगे, तो ऑल द बिग पीपल, बिग नेम्स ऑफ पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार्स, lot of people, spiritual people are taking sound healing. Okay. And everyone is now moving into this alternative therapy. And मतलब coma patients, trauma patients, cancer patients, जो आप बीमारी Even I've been seeing there are so many celebrities who are visiting to take such sessions. Yes. And उनके लिए तो देखो, उनकी लाइफ में हमसे शायद ज्यादा ही प्रॉब्लम्स होती होंगी. स्ट्रेस लेवल्स आर वेरी हाई. So it works immensely for them. अच्छा, हमारे यहाँ जैसे professionals should definitely take them. Okay. Take this therapy. क्योंकि उनको इतनी सारी चीज़ों के प्रेशर्स होते हैं जो ये MNCs में लोग काम करते हैं. टीचर्स, इवन डॉक्टर्स आर टेकिंग दीज थेरेपीज, क्योंकि उनकी लाइफ में भी इतने अलग अलग टाइप के स्ट्रेस होते हैं. दे आर मैनेजिंग सो मेनी थिंग्स. Sometimes, unknowingly something goes wrong in a surgery or something, and उसका trauma उनके अंदर बैठ जाता है. Okay. So they want to release that trauma. So even doctors are taking it. Okay. मतलब जो जितने हीलर्स को मैं जानती हूँ, हर कोई डिफरेंट डिजीज के लिए वर्क जरूर कर रहा है साउंड थेरेपी के थ्रू. बट आई वुड लाइक टू टेल यू फ्यू थिंग्स जहाँ नहीं करनी चाहिए साउंड थेरेपी.
जैसे जिन लोगों के अंदर पेसमेकर लगा हुआ है, हार्ट पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर स्टेंट्स लगे हुए हैं, अच्छा, जिनके अंदर कोई बहुत बड़ा मेटल का हुआ है, जो भी सर्जरी हुई है और मेटल इम्प्लांटेड है बॉडी के अंदर, उनके ऊपर हमको एटलीस्ट बोल्स नहीं रखने चाहिए. अच्छा, क्योंकि द वाइब्रेशन ऑफ द मेटल एंड द बोल क्लैशेस, यस, सो इट विल हार्म देम इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग देम. तो ये हमको बहुत जरूरी ध्यान में रखना कि अगर I think here experience plays a major role. Yes. You cannot तो मैं उनके आसपास बोल्स रख के उनको थेरेपी दूंगी, पर मैं कभी भी उनके उस बॉडी पार्ट पे बोल रख के उनको थेरेपी नहीं And I've दूंगी. been seeing friends are doing it for free कि No. वहाँ से बोल उठा के ले आए and नहीं. I'll do it, you will feel good. सी 2-3 Is it चीजें मैं like- आपको बताती हूँ. सबसे बड़ी बात, इसमें एक एनर्जी एक्सचेंज होता है. हीलर आपको एनर्जी दे रहा है और वो आपकी एनर्जी ले रहा है. हाँ, So it is an energy exchange. You should never get it done for free. free. Even if you are getting it done from your own family member, उसको 101 रुपए दे दो यार, हाँ, 11 रुपए दे दो, Yeah. 21 रुपए दे दो, पर there has to be an energy exchange. Exchange. Don't do it for free. Okay. सबसे बड़ी कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हीलिंग हो, साउंड की जरूरी नहीं है. अगर पेंडुलम डाउजिंग हो, लामा फेरा हो, कोई भी एनर्जी हीलिंग हो, there has to be an energy exchange. Yeah. Else that won't help you. That won't in any help way. you. कोई काइंड में कर लो आप. If you are into a relationship with that person, do it in kind. Kind. But do it in any form. Okay. Don't take it for free. And Varsha, have you ever conducted such sessions in corporate offices as you Yes. were telling me about this? Yes. So, कॉर्पोरेट में करना बहुत जरूरी है. जरूरी है, क्योंकि as you said. जो उनका स्टाफ होता है, जो भी मेंबर्स हैं कॉर्पोरेट के, एवरीवन हैज डिफरेंट इश्यूज. Issues. Yeah. किसी के ऊपर बहुत फैक्ट्री का प्रेशर होता है, किसी के ऊपर सेल्स का प्रेशर होता है. उनको अगर आप ये थेरेपी देते हो तो उनका वर्कलोड का जो ट्रॉमा होता है या जो रिलीजेस करनी होती हैं वो बहुत इजी होती हैं. एंड दे बिकम वेरी काम, वेरी एंजाइटी रिलीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. Correct. तो कॉर्पोरेट्स में, कॉलेजेस में, वी डू अ लॉट ऑफ सेशंस इन कॉलेजेस for students, because I have my maximum clientele who are teenagers, youngsters between 18 to 30. Okay. Yes. Okay. So उनको सबसे ज्यादा एंजाइटी एंड डिप्रेशन इश्यूज है. Okay. Okay. So उनके लिए बहुत जरूरी है. And Varsha, do you conduct any courses also for that? Do I you give trainings? As of now, I am training only for chakra meditation, Okay. which is a 7-day workshop every month. Okay. Sound healing I want to do, but then people have to, as I told you, पहले आपको थोड़ा सा spirituality में होना पड़ेगा. I want to people should be very free of anxiousness and depression, and then I want to start taking workshops. Okay. और सबसे बड़ी बात ये कि अभी तो ये कॉन्सेप्ट एक्सेप्टेड ही नहीं है. जब तक कॉन्सेप्ट ये एक्सेप्टेड नहीं होगा, थेरेपी एक्सेप्ट नहीं होगी, तब तक किसी को सिखाना इज नॉट राइट. Is not right. यस, Correct. क्योंकि मुझे लोगों को प्रोफेशनली नहीं सिखाना है. हाँ. आई वांट टू टीच देम फॉर स्पिरिचुअलिटी. Correct. यस. तो वर्षा, एज वी आर टॉकिंग अबाउट साउंड थेरेपी, कि साउंड किस तरह से हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकता है, हमको हील कर सकता है, वहीं कई ऐसे भी साउंड हैं जो हमारी लाइफ में या हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल हो सकते हैं, जैसे कि Yes, बहुत इज देयर एनीथिंग? यस. सो कोमल, इसमें मैं आपको बोलूंगी, जो नेचुरल इंस्ट्रूमेंट्स है, जो हमारे ये वो पुराने लोग यूज करते थे, जैसे हमारी बांसुरी हो गई, हाँ. हमारा सितार हो गया, गिटार हो गया, जो ये हमारे नेचुरल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे ये हमारे कांसा बोल्स हो गए, कांसा की जो घंटियां हैं, ये आपको कभी हार्म नहीं करेंगी. पर जो आजकल के ये इलेक्ट्रिक साउंड्स हैं, एंड जो ये बच्चे आजकल वो लाउड म्यूजिक सुनते हैं, एंड वो हेडफोन्स पहन के, they say they love music. they love music. You don't love music. You don't High love volume on. natural music. Yeah. You love only that, extra frequency वाला music, जो आपके which is very harmful for your body. वो headphones आप लगाते हो, दो silent discos and वो एकदम jazz and all that. Silent discos are not good. No, because somewhere you are taking a frequency which is much higher than what your body wants. तो आपका पूरा डिसबैलेंस हो जाता है बॉडी के सेल्स का. और जो आपके में इतनी एनर्जी आ जाती है, वो इट्स नॉट गुड फॉर यू.
हाँ. आपको लगता है आप ओवर एनर्जेटिक हो गए वो साउंड सुन के, बट समवेयर यू हैव हार्म्ड योर सेल्स, Yes. क्योंकि आपने उनकी फ्रीक्वेंसी मूव करने की इतनी बढ़ा दी हाँ. कि आपकी बॉडी डिसबैलेंस हो गई. Yes. और ये आपको अभी पता नहीं चलेगा. हाँ. लॉन्ग टर्म में व्हेन यू हैव इश्यूज यू नो विथ योर ईयर्स, थ्रोट, नोज, ये सब जो इतना आजकल टीनेजर्स को होता है बार, It's same like how you take liquor, how you Yes. consume liquor and tobacco आप and कुछ other भी stuff. ओवरबोर्ड जाओगे Yes. कोई भी चीज में, तो That will आपको harm वो you in हार्म future. करेगी. आप साउंड की फ्रीक्वेंसी को आपने इतना बढ़ा दिया है जो आपकी बॉडी के लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है, हाँ. वो हार्म करेगा ही करेगा. हाँ. आज नहीं तो उतनी near future बंद में. रूम में आप इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पे वो साउंड्स लेते हो, आपके सेल्स डिसरप्ट हो जाते हैं बॉडी से. हाँ. इट इज वेरी हार्मफुल. Very harmful. यस. सो जितना आप नेचुरल साउंड लोगे, आप पानी के पास बैठ के साउंड लो, Yes. टेक द वाटर साउंड, इट इज सो गुड फॉर योर बॉडी. Yes. मैं तो जितने लोगों को बोलती हूँ हॉलीडेज पे जाते हो तो कोई वाटर लोकेशन ढूंढो, Yes. सी के पास जाओ, रिवर्स के पास जाओ, Correct. टेक एज मच वाटर साउंड एज यू कैन. Even I try to ensure that Varsha, recently like when I went to Paris, I ensured that मैं अपना जो evening का time है वो अपनी family के साथ उस garden में बिताऊं, Yes. rather going to Eiffel Tower. Yes. We spent that time with family हाँ. there itself, and we were like having good time for like 2-3 hours. We were there, so you know that time you actually heal yourself. दैट इज द बेस्ट is- थिंग टू डू. अच्छा, Yes. हमको स्ट्रीट्स पे वो लोग इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए एक बंदा दिखता है, हाँ. हम कभी रुक के उसको नहीं सुनेंगे. नहीं सुनेंगे. वो इतना अच्छा साउंड है आपके लिए, पर हम उसको नहीं सुनेंगे. वी विल गो एंड फाइंड अ पब Very true, very true. जहाँ पे वो भड़ साउंड हो रही होगी, हाँ. बट दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर यू. Yes. And even I would like, since I am running a community of mothers, I would always like to tell all the mothers also, I would like to give a message here that whenever you go to any small places whereas you find such basuris or such musical instruments, try and buy it for your kids. यस. क्या होगा, एक या दो बार वो उसको प्ले करेंगे, they'll try it out, but at least you know कहीं ना कहीं म्यूजिक से जुड़ाव उनके लिए Yes, बहुत बहुत जरूरी है, जरूरी है. स्पेशली आई थिंक आज के टाइम में. एंड बल्कि कोमल, मैं तो बोलूंगी एज अ टीम इनमो वी शुड प्लान मदर एंड चिल्ड्रन सेशंस Yes, we फॉर should. साउंड हीलिंग, सो दैट यू नो वी कैन कनेक्ट द. अच्छा, मैं बताऊं, इससे रिलेशनशिप्स में बहुत फर्क पड़ता है. तो अगर हम मदर चाइल्ड सेशन करते हैं या फादर एंड चाइल्ड सेशन करते हैं, हम उसके लिए स्पेशल हीलिंग करेंगे जिससे उनकी बॉन्डिंग में बहुत डिफरेंस होता है. Yes. तो वी डू अ लॉट ऑफ वर्क लाइक दिस ऑल्सो, जिसमें मदर बच्चों की, हस्बैंड वाइफ की, मतलब आपस के रिलेशनशिप में बहुत बॉन्डिंग में फर्क पड़ता है. हाँ? यस. सो दीज सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू टेक. ग्रैंड पेरेंट सेशंस होते हैं, या सो दे आर सच ब्यूटीफुल. फ्रेंड सेशंस होते हैं, हाँ. जिसमें मैं आपको बताऊं कितनी बार हमने 2 फ्रेंड्स का सेशन करा है जिनके बीच में अननेसेसरी यू नो बहस हो गई थी या इश्यूज हो गए थे. दे हैड ट्रस्ट इश्यूज एंड वी डिड दीज सेशंस एंड दे गॉट बैक टू ईच अदर. Wow, उन्होंने आमने सामने बैठ के अपने प्रॉब्लम्स रिलीज करे हाँ. एक दूसरे के, हाँ. जिससे कंफ्यूजन्स हो रहे थे. अच्छा. तो these sessions are very good bonding sessions also. आई थिंक वर्षा, दीज प्रॉब्लम्स आर टेकिंग प्लेस बिकॉज लोग आजकल इमोशनल कम होते जा रहे हैं, Yes. या फिर अपने आप को स्ट्रॉन्ग प्रिटेंड करने नहीं, के और लिए सिर्फ they ऊपर want से to- दिखावा करते हैं. दे Yes. हैव नथिंग इन द हार्ट, नो Yes. इमोशंस. Yes. They've you know made themselves like stone. हर कोई एक इतना पत्थर दिल होता जा रहा है Yes. कि प्रॉब्लम्स इसलिए ज्यादा बढ़ रही हैं. हाँ. सिर्फ ऊपर का दिखावा है, कोई अंदर इमोशंस नहीं है, लव नहीं है, अनकंडीशनल लव नहीं है. सबसे बड़ी बात आई थिंक अनकंडीशनल लव आजकल अपने पेट के साथ होता है बस लोगों का, पेट्स के pets अलावा के संग होता है. नॉट और- इवन विद द पार्टनर्स एट Yes, और टाइम्स. मदर चाइल्ड या फादर चाइल्ड का होता है. दैट टू और आई थिंक तो एट कुछ सर्टेन एज वो भी खत्म होता वो भी जा रहा है. खत्म होता जा रहा है. Yes. इफ यू वांट कनेक्ट विद द नेचर, और जितना बच्चे बाहर जाते जा रहे हैं और सब उतना ही कनेक्ट कम होता जा रहा है. कम होता जा रहा है. आई थिंक कनेक्ट कम नहीं हो रहा है वर्षा, बट हम लोगों ने दिखाना बंद कर दिया. दिखाना बंद कर वी हैव स्टार्टेड यू नो. बिकॉज एवरीवन इज सो Yeah. बिजी इन देयर लाइफ. Yes. कोमल, सबको अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए, अपनी लाइफ चाहिए. Yes, दे वांट टू लिव देयर लाइफ देयर वे. या ये सबसे बड़ी बात है. सो आई थिंक मुझे लगता है इमोशंस जो भी आपके अंदर है उसको हम थोड़ा सा शो कर सकते हैं थ्रू करना such ही sessions. चाहिए. And I would love to have this session with mom and kids especially, We because will as do you mentioned that actually ज़रूरत है. Yes. It's need of an hour. Yes. And I think we cannot deny this thing.
Acha Varsha, my last question to you, like if we talk about sound healing therapy in India में still it's evolving and you said in other countries also. तो आप इसमें क्या future देखते हो आने वाले time में? Will it like emerge more? See, Komal, I feel it will emerge. It Yeah. definitely will emerge. We should push our own children to go towards spirituality a bit, जिससे वो लोग ये चालू करें. ये तभी आएगा जब हम अपने बच्चों को थोड़ा घर में पूजा पाठ सिखाएं, मेडिटेशन सिखाएं, और सिर्फ ये ना बोलें कि आप तो एंजॉय करो, मॉल्स में जाओ, पार्टी करो. टिल वी डोंट पुश देम टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, दे विल नॉट डू इट. और सबसे बड़ी बात, हमको हमारे घर में ये माहौल क्रिएट करना पड़ेगा. एंड इसका बहुत बड़ा फ्यूचर है. पीपल आर गोइंग टू गेट दिस टू इंडिया, एंड हम तो बहुत पीछे हैं. I struggle to get what instruments I want, क्योंकि मुझे इंडिया में मिलते नहीं है. Yeah, you have told me that. Yes, और इतने इनमें इतना वेट होता है, इतना हैवी होते हैं कि आप किसी से मंगा भी नहीं सकते हो. एंड मैं खुद जाती हूँ लेने, तो उसमें मैं अगर उसको आई वांट टू कॉल इट थ्रू एयर या शिप या व्हाटएवर, ड्यूटी इतनी है that I'm not able to source these instruments. So somewhere we have to get this therapy to India, जिससे लोग बढ़े, कम्युनिटी बढ़े, तो हमको ये सामान, ये इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया में मिलने लग जाए. नाउ आई एम अगेन ट्रैवलिंग ओनली टू बाली टू गेट न्यू इंस्ट्रूमेंट्स दैट आई वांट. ओके. यस, अभी तो मेरे को नए इंस्ट्रूमेंट्स लाने की जरूरत है जो मेरे पास है नहीं, जो सिर्फ बाहर है. तो फ्रॉम नेक्स्ट, आई थिंक फ्रॉम जुलाई, आई एम गोइंग टू स्टार्ट ग्लास सिंगिंग बोल्स. ग्लास सिंगिंग, ओके. जो ग्लास के बने हैं, विद अपनी जो प्रॉपर एकदम थिन ग्लास के, एंड उसका भी आई एम गोइंग टू डू अ कोर्स नाउ फॉर 10 days. सो ऐसे कितने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? बहुत होते हैं. मतलब मैं आपको बताऊं, एक एक छोटे छोटे जो रैटल्स होते हैं, जो हम बच्चों का झुंझुना बोलते हैं, वो भी इस साउंड हीलिंग का पार्ट होते हैं. अच्छा. हर रैटल का एक डिफरेंट साउंड होता है. एंड ऐसे थाउजेंड्स ऑफ रैटल्स आते हैं, थाउजेंड्स ऑफ फ्लूट्स आते हैं, एंड दैट मेक डिफरेंट साउंड्स. तो आपको जितना आप ढूंढने जाओगे उतने इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है. हाँ, मतलब मैं एक बार में एटलीस्ट आई थिंक इन इंदौर नोबडी हैज द काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आई हैव, एंड नाउ आई एम अगेन कलेक्टिंग मोर. पर जितने लोग बढ़ेंगे, आई थिंक हमको उतनी सोर्स करने में ये चीजें इजी होएंगी. बट इट हैज अ ह्यूज प्रोस्पेक्ट, एंड आई वुड आस्क एवरीवन टू अडॉप्ट इट एंड स्टार्ट डूइंग इट. आपको दूसरों के लिए नहीं करना है, आप एज अ हीलर मत करो, पर आप अपने खुद के लिए, फॉर योर सेल्फ, you should do it. You should try it once. Yes. Okay. So Varsha, I just got to know that sound healing black magic में भी help करती है, because मैंने कहीं सुना है कि black magic के लिए भी इसका use होता है. So is it like true? So कोमल, सबसे बड़ी बात, आज के लोग बहुत ये चीज़ को इग्नोर करना चाहते हैं कि ब्लैक मैजिक, स्पिरिट, नज़र, ऐसा कुछ होता है. पर हमारी एनर्जी वर्ल्ड मतलब में ऐसा होता है. हाँ, लोग बिलीव नहीं करते कि ऐसा होता है, पर हमारे एनर्जी वर्ल्ड में हम, मतलब ऐसा होता है, और हमारे साथ, खुद के साथ एक से बहुत से एक्सपीरियंस हो चुके हैं. Where I like have to share any? Yes, I will definitely share. Where I have helped people come out of it. एक बार किसी के लिए, मुझे रात को, I know that person personally, तो मुझे उनके घर का ड्रीम आया कि उनके घर में एक मिरर है, जो मिरर पोजेस था. मिरर पोजेस था. हाँ, तो मिरर उनके घर में था, जो एज अ डेकोरेशन पीस लगा हुआ था, एंड वो मिरर पोजेस था. एंड some things were not working right for that person, so I wanted have to. you ever visited her house? Yes, मैं उनके घर पहले कई बार जा चुकी थी. पर मुझे वो जो मिरर दिख रहा था, वो मैं उसको प्लेस नहीं कर पा रही थी कि वो कहाँ पर लगा हुआ है. तो आई कॉल्ड हर अप, आई आस्क्ड हर कि मुझे एक ऐसा मिरर तेरे घर में दिख रहा है, एंड विच इज पोजेस्ड विद अ स्पिरिट, एंड आई वांट यू टू रिमूव दैट मिरर. तो फर्स्ट तो शी डिड नॉट बिलीव कि क्यों यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं है, मेरे को जबरदस्ती ये सब मत बता, फिर मेरा दिमाग यही घूमेगा. सो आई सेड, तू कुछ मत कर, प्लीज मेरी बात मान के सिर्फ उस मिरर को अपने घर से निकाल दे. तो शी सेड, अच्छा मुझे बता कैसा दिखता है, क्या दिखता है. आई एक्सप्लेन्ड हर द एंटायर थिंग. फिर उसने फिगर आउट करा कि वो मिरर उसके डाइनिंग टेबल की साइड वाली वॉल पे एज अ डेकोरेशन पीस लगा हुआ था. एंड उसने बोला क्या करना है. मैंने कहा ये
इसको तोड़ के पूरा ब्रेक करा के यू हैव टू थ्रो इट। हाँ, किसी को देना मत कि, और बिना तोड़े कहीं रखना मत। यू हैव टू ब्रेक इट इनटू पीसेस एंड जस्ट थ्रो इट अवे। हाँ, एंड उसने कहीं ना कहीं बेमन के भी शायद करा। हाँ, एंड आफ्टर दैट आई थिंक शी इज इन अ वेरी कंफर्टेबल जोन। हाँ, यस। सो मैं आपको बताऊं ये चीजें होती हैं। So, आपके घर में अगर वर्षा हम सोचते हैं घर पजेस्ड है, मिरर पजेस्ड हो सकता है, आपके घर की कोई भी चीज पोजेस्ड हो सकती है। कोई भी मतलब सबसे ज्यादा मिरर्स में सबसे पहले स्पिरिट्स आती है। हाँ, उसके बाद पेंटिंग्स। अच्छा पेंटिंग्स फिर आपके घर में अगर क्रिस्टल्स होते हैं, हाँ, क्रिस्टल सबसे जल्दी एनर्जीज अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपने उनको उसको एज अ डेकोरेशन रख लिया हो और आप उसको क्लियर करना आपको नहीं आता हो, वो आपको कैसे उसको थोड़े थोड़े दिनों में क्लेंस करना हो, तो दे विल अट्रैक्ट स्पिरिट्स द फास्टेस्ट। आपके आर्टिफैक्ट्स कई ऐसे आप ले आते हो जो आपको दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं, बट दे शुड नॉट बी केप्ट इन योर हाउस। एंड आई वुड लाइक टू से कि अगर आपको आपके घर में कभी ऐसा फील हो, घर में, ऑफिसेज में, आपके वर्क स्पेस में, कि आपका काम ठीक नहीं चल रहा है, बार बार अड़चने आ रही हैं, रुकावट आ रही है, एंड आपके घर में बहुत फाइट्स हैं, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको अपने घर की, ऑफिसेस की स्कैनिंग जरूर करा लेनी चाहिए। इफ यू गेट टू नो दैट समथिंग इज नॉट राइट, एंड आपको यूनिवर्स ये साइन जरूर देगा। आपको थोड़ा सा कॉन्शियसली आप देखोगे तो आपको यूनिवर्स साइन जरूर देगा। अगर आपके यहाँ कुछ भी पोजेस्ड होगा, कुछ होगा, राइट एनर्जीज नहीं होंगी, किसी की नेगेटिव एनर्जीज होंगी जो आपके साथ ही रहता होगा, तो ये सब आपको क्लियर करा लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा एनर्जी हीलिंग का पार्ट है। तो इसमें हम अलग अलग चीजें यूज करते हैं, कई बार ये साउंड से क्लियर नहीं होती हैं, तो ये आप ही इसमें हेल्प करते हैं? यस, आई डू अ लॉट ऑफ क्लियरिंग्स, आई डू अ लॉट ऑफ। एंड यू हैव पीपल विथ यू जो इसमें हमको हेल्प कर सकते हैं along with you? नो, बिकॉज ओनली जिसने ये सीखा होगा, जो देखो कोमल, सबको ये चीजें ना दिखेंगी, ना समझ में आएंगी। आई एम इनटू इट फॉर सो मेनी इयर्स, और मैंने सीखा है इसलिए मुझे पता है, तो मैं कर सकती हूँ। तो इसका बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है, यू हैव टू सेंड मी अ फोटोग्राफ ऑफ दैट प्लेस। आई विल स्कैन एंड टेल यू कि वो पोजेस्ड है, क्या है। मतलब मैं ये भी आपको बता सकती हूँ। गेट टू नो, मतलब मेरे पास एक पेंडुलम होता है, इसका एक फॉर्म होता है, एक प्रोसेस होता है, जिसमें हम पेंडुलम हमको सब चीज बता देता है। एंड कई बार ये आपके एंसेस्टर्स के थ्रू होता है। आपने एंसेस्टर्स की रिलीज नहीं हुई होगी, अभी तक वो यहीं पे होंगे। एंड कभी आपके ये ब्लैक मैजिक हुआ हो आपके ऊपर, नजर हो आपके ऊपर। नजर तो बहुत बड़ी चीज है जो आपको हार्म करती है। और मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगी, अगर आपको किसी से आप बात कर रहे हो आई टू आई, और आपको उससे अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही हो, प्लीज आंखें नीचे करके बात करें, उसमें कोई खराबी नहीं है। आई थिंक आई हैव एक्सपीरियंस दिस। मतलब कई मैंने देखे पॉलिटिशियंस हैं, दे नेवर टॉक टू यू, आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करते, इवन दे डू इट लाइक दिस, दे टॉक लाइक दिस। आप उसमें आपका कोई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होता है, उसमें आपको नजर नहीं मिलानी चाहिए। अगर आपको उस आदमी से लग रहा है कि आपको सही वाइब्स नहीं आ रही है, तो नजर इतनी बड़ी चीज है जो आपको हार्म कर सकती है। तो नजर बहुत बड़ी चीज है। ब्लैक मैजिक होता है, स्पिरिट्स होती हैं, हमारे वो एंसेस्टर्स कई बार बहुत सालों तक हमारे अराउंड होते हैं, जिनको हम रिलीज नहीं कर पाते हैं। ये सब चीजें होती हैं, और ये सब चीज क्लियर कराते रहनी चाहिए। अगर आपके बच्चे बहुत बीमार पड़ते हैं, तो समवेयर इट इज नॉट अ मेडिकल इशू, समवेयर इट इज आइदर अ नजर इशू और सम स्पिरिट इशू, ये सब क्लियर करा लेना चाहिए। मतलब मैं बहुत ओपनली बोल रही हूँ, बिकॉज हमारी हीलिंग जर्नी में ये एक बहुत बड़ा पार्ट है, कोई छुपाने की बात नहीं है। Have you ever experienced any of the clients which visited you and you have मैं बहुत लोगों के अंदर से मैंने ब्लैक मैजिक क्लियर करा है। मैं बताती हूँ कोमल, लोग कैसे ब्लैक मैजिक होता है। आप कोई मंदिर में गए, वहां आपने कोई डोरा पहन लिया, या किसी पंडित से आपने झाड़ा लगवा लिया, ये सबसे बड़ा फॉर्म है ब्लैक मैजिक होने का। अच्छा, हम तो ये इसलिए करते हैं कि नहीं, ये प्रोटेक्शन के बदले ये सबसे बड़ा फॉर्म है ब्लैक मैजिक होने का। अच्छा, हाउ कम? बट देखो, उस आदमी ने आपको डोरा बांधा,
उसने किस इंटेंशन से बांधा आपको क्या पता? वो पोजेस्ड है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो कितना प्योर है, वो आपको कुछ नहीं पता। वो डोरा कहाँ से लेके आया है, कौन सा उसने भगवान को चढ़ा के ही आपको चढ़ाया है। करेक्ट। ये सबसे लोग इतना, इंडिया में लोग झाड़ा पे इतना बिलीव करते हैं। करेक्ट। ये सबसे ज्यादा, मैं आपको इतना बड़ा इंसिडेंट बताती हूँ। मेरे पास एक फैमिली आई कहीं आसपास से, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम, कोई राजस्थान के टाउन से एक फैमिली आई। पहले वो उनका हस्बैंड इतना बीमार, उनको वो लोग अहमदाबाद ले गए, कोई उनको किसी ने बोला ट्रीटमेंट के लिए। वो हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में एडमिट करा, वो उसको बोला भी नहीं, और कोई मेंटल हॉस्पिटल था वो, उसको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। 6-7 दिन उसको पागल सा घोषित करके वहां रखा, किसी से बात करने नहीं दिया, कुछ नहीं, बीमारी उसको कुछ नहीं है, रिपोर्ट सारी उनकी क्लियर है। बस उनको मेंटल इशू बोल बोल के वहां एडमिट करके रखा, और मेंटली उनको बिल्कुल डाउन कर दिया। देन ही केम टू इंदौर, ही वेंट फॉर काउंसलिंग। उन्होंने मेरे पास उनको रेकमेंड करा। मेरे पास वो आए, मैंने उनको देखते से बोला कि आपको नजर लगी है। बोले मैम आप कैसी बात कर रहे हो, नजर तो हर किसी को लगती है, उससे इतनी बीमारी थोड़ी हो सकती है। नजर इज लाइक हमको लगता है ठीक है। और मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मेरे पाँव काम नहीं कर रहे हैं, मेरे को इतनी वीकनेस आती है, मैं बैठ नहीं पाता हूँ, ये नजर से थोड़ी हो सकता है। मैंने कहा आप अगर इंदौर में 3-4 दिन रुक सकते हैं तो आप सिर्फ 3 दिन रुकिए, मैं आपको 3 बैक टू बैक साउंड हीलिंग्स दूंगी। हम आपकी नजर या जो भी है आपके अंदर मैं निकालूंगी, फिर अपन बात करेंगे। उस दिन कोमल ये बात हुई, उन्होंने बोला ठीक है एक हीलिंग आप मुझे अभी दे दो। मैंने उनको फर्स्ट साउंड हीलिंग दी। भयंकर ब्लैक मैजिक था उनके ऊपर, ही वॉज फुल ऑफ ब्लैक मैजिक। मैंने वो निकाला। सेकेंड डे अगर वो नहीं, उन्होंने मुझे उस दिन शाम को फोन करा कि मुझे बहुत जोर से सर्दी खांसी हो गई है, मेरी आवाज नहीं निकल रही है, तो मैं क्या करूं। मैंने कहा आप कुछ मत करो, आप 3 दिन घर बैठो, कोई मेडिकेशन मत लो, आप 3 दिन बाद मेरे पास फिर आना। कोमल वो 3 दिन बाद आए, बिल्कुल फिट फाइन, अपने पैरों पे, विदाउट एनी हैवीनेस, कोई पाँव में दर्द नहीं, कोई वीकनेस नहीं। एंड ही वॉज क्राइंग, मैडम आपने क्या करा। मैंने कहा आप लोग इतनी गलती करते। मैंने कहा आप अहमदाबाद जाने के पहले आप कहीं गए हो जहां आपने कुछ झाड़ा लिया है या कोई धागा बांधा है? बोले हाँ हम गए थे ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी तो हम इस मंदिर में गए थे, हमने वहां झाड़ा लगवाया था, और उसके बाद से तो और बिगड़ गया। एंड टिल नाउ he comes every month just to meet me, he is fit and fine। तो सिर्फ ब्लैक मैजिक था और कुछ नहीं था। Great, yeah, you are doing great job. Thank you so much. But I would like to tell you and everyone that these things are there। कुछ आपके संग होता है तो कोई खराबी नहीं है, आप एक स्कैन करा लो, आप हीलिंग मत लो, आप थेरेपी मत लो अगर आप बिलीव नहीं करते हो, पर आपको चेक कराने में क्या खराबी है? Yes। तो आपका, और प्लीज कोई जेन्युइन हीलर से कराएं, जिसको नॉलेज हो, जिसने स्टडी किया हो। प्लीज कोई ऐसे बाबा या पंडित या इनके पास जाके कराने से इट इज मोर हार्मफुल देन गेटिंग इट क्लियर्ड। So get them checked before visiting any random person. And उस बंदे पे आपको जरूर ट्रस्ट होना चाहिए, then get it done. Wow. So Varsha, it was wonderful having you in this show, and I think हमारे listeners को काफ़ी अच्छे insights मिले होंगे, काफ़ी valuable insights मिले होंगे। अगर आप वर्षा से कनेक्ट करना चाहते हैं for any of this session, you can connect with us. I'll share her number in the description. And if you have not subscribed to my channel yet, please do so. Thank you so much. Thanks, Varsha. Thank you, Komal, for inviting me and for letting me share this knowledge with everyone. Thank you. Thank you so much.